I am Artika Shukla. You might have heard about me. मेरी 4th rank आई है इस बार and I'm a medical science graduate. I'm an MBBS and I was doing MD which I left, so I don't have that degree. And this is my first attempt and my optional was also medical science. Anybody from medical science optional? Very rare but good. Okay, so I've been called कि मैं आपको अपना strategy बताऊँ. I used to sit here till December, as you all know. I am a student of the mains test series, not the classroom or PT, but a student of the test series. और I have given, I think 10 or so tests जो pre के बाद होते हैं, all of them, by coming to this very center, sitting where you're sitting. So मैं बताती हूँ. I just want a few things, to be made clear. First of all, as you all know, it is 50% luck and 50% hard work. So I believe I have been extremely lucky. तो आप प्लीज़ जो भी सुने ये मत सोचना कि if you do this you will get through, because there is a big aspect of luck in it. And number 2 is please have a little faith in what I am saying. कुछ चीज़ें आपको काफ़ी unbelievable लगेंगी, but I can promise you that I am being very honest. Okay, maybe I have been lucky, but try to believe what I am saying. ठीक है? तो let's begin. When is the prelims? Prelims is on 7th. So we'll begin with prelims का छोटा सा. First of all, a few general things about prelims. सबसे पहले तो do not spend more than 2 months exclusively on prelims. ठीक है? This is one mistake that I've seen a lot of people make, कि वो सिर्फ prelims की तैयारी करते रहते हैं अगस्त तक, and then they think कि जब result आएगा then we'll prepare for mains. Do not do that. ठीक है? If you are a sincere student, if you are working hard, I can assure you will get through prelims. And I can say this because I was doing MD, in pediatrics till November 2014. I resigned from it in December. उसके बाद I came back. I started preparing for mains first. Someone told me कि पहले mains की तैयारी करो. And starting from May of 2015, I started preparing for prelims. And I got through prelims. ठीक है? And so this is what I want to say कि आप prelims की ज़्यादा tension मत लें. If you are sincere, you will get through, because it is a qualifying exam. Keep this in your mind. You will get nothing by getting 200 out of 200 in prelims. ठीक है? Now that CSAT is made qualifying, उसके लिए ज़्यादा कुछ बात करने की ज़रूरत ही नहीं है. It's just maths plus minus English थोड़ा सा. It's 10th level का चीज़ है. तो do not worry about it. Do not go for special ये वो 10 minutes 30 minutes वाली classes. It's very simple, and anybody with a little bit of aptitude can get through paper 2 of prelims. Paper 1, which is GS, उसके बारे में in short what I can tell you is that आप जो भी पढ़ रहे हो, whatever you are reading, notes हो, books हो, spectrum हो, current affair हो, anything that you are reading should be supplemented with doing test papers. That is the most important advice that anybody can give you about prelims. मैंने जून जुलाई तक भी काफ़ी सारा मेंस का पढ़ा था, बिकॉज आई हैड माई ब्रदर गाइडिंग मी, एंड उसने मुझे बोला था कि 23 अगस्त को प्रीलिम्स है, तो तुम क्या करो 1 अगस्त को जाओ, किसी भी 2 रेप्यूटेड कोचिंग सेंटर्स के सारे पेपर्स ले आओ. सो गेट सम 40-50 पेपर्स एंड फिनिश देम इन 20 days, एंड दोज विल बी, दैट इज द प्रिपरेशन दैट इज रिक्वायर्ड फॉर क्रैकिंग प्रीलिम्स. एंड दिस इज समथिंग वेरी ट्रू. इसीलिए मैं कह रही थी हैव अ लिटिल ट्रस्ट इन मी. आप कितना भी पढ़ लें, यू कैन लर्न होल ऑफ स्पेक्ट्रम, यू कैन लर्न ऑल ऑफ इकोनॉमिक्स, पूरा करंट अफेयर. इट विल नॉट बी मोर हेल्पफुल दैन सॉल्विंग अबाउट 20 टेस्ट पेपर्स. ठीक है? बिकॉज देर इज नो सिलेबस ऑफ प्रिलिम्स, अनलाइक मेन्स. प्रिलिम्स विल कैच एवरीथिंग विच इज अंडर द सन. सो इसके लिए इट इज़ वेरी एसेंशियल दैट यू हैव जॉइंड दिस इज़ अ वेरी रिप्यूटेड प्लेस ऑफ कोर्स. तो आप यहाँ के कोचिंग के पेपर्स ले लें, कहीं और के ले लें. यू हैव एनी अदर गाइडेंस, समबडी गिविंग यू पेपर्स, डू इट. ऑनलाइन मिल रहे हो, डू दैट. द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवाइस रिगार्डिंग प्रीलिम्स. नंबर 2 दैट आई कैन टेल यू, सोर्सेज तो सबको पता होते हैं प्रीलिम्स के. व्हाट इज एसेंशियल इज कि आप एक बार कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में टेस्ट दे दें, ताकि यू नो कि आप कितनी नेगेटिव मार्किंग कर देते हैं. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है? बिकॉज आई attempted some 80 questions, and when I was attempting, I think I felt कि मेरे सारे सही हैं. I found the paper very easy last year का जो हमारा आया था, and when I came back I realized कि मेरे 20-25 तो गलत थे. So this should not happen with you. So try to reduce your negative marking, क्योंकि मैंने कोई भी controlled setting में test नहीं दिया था. I did it all in my room.
कि कर रहे हैं फिर आंसर देख रहे हैं फिर उसको बुक की तरह पढ़ ले रहे हैं पेपर को, यू नो दैट वे. So this is one thing that you should learn from me. You should give 1 or 2 tests in controlled setting, या तो आप अच्छे से अपने को assess कर लें उसी तरह घर पे बैठ के भी. So that is one very important thing regarding prelims. Prelims is qualifying, ठीक है. So don't get too stressed about it. आपके चाहे 100 आ रहे हो चाहे 200 आ रहे हो, it doesn't really matter, right? Your aim is to get through the mains examination. That is what will get you in the final list. That is what will make you a topper. So I will talk more about that, ठीक है. Prelims is cool, okay? Any content related अगर queries हैं तो वो तो you have teachers, you have guidance, ample guidance in Rajendra Nagar, more than required. So I can only say कि आप papers करें, it will sail you through, ठीक है? Then we come to mains. Mains के लिए what happens is when you are done with prelims, you are left with 3 odd months, and that is the toughest part of the entire year. That is the part जहाँ पे every day your strength will be tested as much as your knowledge, because every day you will feel that you are doing something wrong. आपका optional छूट जाएगा if you are doing paper 1, paper 2 छूट जाएगा if you are doing paper 4, essay छूट जाएगा if you are thinking of improving optionals. So that is one place जहाँ पे very specifically I will say work on your mind. Do not get bogged down. आप ऐसा मत सोचिए कि आपको हर दिन सब कुछ पढ़ना है. You come to give a test, you get maybe 60 marks in it. Do not get bogged down by that. Okay? It is a long process. चाहे कोई आपको कुछ भी कह दे, your rank and merit will be decided on 3rd of December. वही डेट है ना शायद मेंस की. बस तो उसके पहले कोई टॉप कर रहा है कोई लास्ट आ रहा है, it does not matter. Hold your patience, hold your strength for 3rd of December. That is the day you are going to be tested. मेरे साथ ऐसा बहुत हुआ था. आई वॉज वेरी सिक्लूडेड. मैं टेस्ट देने आती थी, somebody used to say ये हो गया, ये बिल आया, ये एक्ट आया. आई यूज टू गो बैक एंड क्राई फॉर एन आवर. फिर मेरा एक दिन खराब होता था उसमें. डू नॉट डू दैट. एंड तक यू विल डू वेल. ओके, हैव दिस कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ. एंड दिस इज वॉट आई हैव बीन राइटिंग एंड सेइंग टू मेनी पीपल कि मोर देन नॉलेज दिस इज अ टेस्ट ऑफ योर स्ट्रेंथ, ऑफ योर पेशेंस, ऑफ योर पर्सनैलिटी. ठीक है. मेंस के जो नंबर होते हैं, मेंस का जो मार्किंग पैटर्न है, दैट इज समथिंग सो ओपेक कि मैं भी नहीं बता सकती कि मुझे क्यों मिल गए, है ना. वाई आई गॉट सिलेक्टेड, बिकॉज आई डोंट नो वॉट वर्क वॉट डिड नॉट. अभी नंबर्स आ गए हैं, इवन देन आई कैन नॉट टेल यू. आई विल टेल यू वन वेरी पर्सनल थिंग. पेपर 2 देने के बाद व्हेन आई केम बैक, आई वॉज क्राइंग. आई वॉज एक्चुअली क्राइंग इन माई होटल रूम जब मैं वापस आई थी कि ये तो मतलब बर्बाद हो गया. एंड यू नो व्हाट हैपेंस, यू स्पेंड ऑल योर टाइम प्रिपेयरिंग पेपर 2 and 3, राइट. 1 तो हार्डली कोई पढ़ता है, 4 तो ऐसे ही वो तो पता नहीं कौन पढ़ता है और कहाँ से क्वेश्चन आते हैं. एंड यू मे बी यू प्रिपेयर योर ऑप्शनल एंड यू प्रिपेयर 2 and 3. मतलब आई यूज टू डू दैट. और जब मेरा 2 वॉज अ पेपर इन विच आई वॉज क्लोज टू टीयर्स वाइल गिविंग द पेपर, एंड आई एक्चुअली क्राइड वाइल कमिंग बैक, because I did not have an idea about 5 or 6 questions. बिल्कुल ही नहीं, कभी देखे ही नहीं वो टाइप के. एंड द रेस्ट ऑफ इट तो वही टाइम मैनेजमेंट से ही थोड़ा स्क्रू अप हो जाता है. सो दैट इज़ वॉट हैपेंड, एंड आई हैव गॉट 96 marks in it, which is probably a very good score in paper 2 this year. People have not crossed 80, most of them. Some have not crossed 90. So it is apparently the best. मतलब पेपर 1 से ज़्यादा नंबर मुझे 2 में आए. So this is what you should learn from my experience. This is the only thing that I am better at than all of you. It is not knowledge, it is just experience. Take this experience from me. आपको कोई लगे कि you have done this horrible big mistake, it does not work out that way. ठीक है. Many times, so what I should have done is I should have come back and read 3 and 4. मैंने उस दिन इतना टाइम बर्बाद किया क्योंकि I was crying because of paper 2. So don't do that. Now coming to the strategy. Mains में there is the first paper is an essay. You have to write 2 essays. Okay. Quick points about the essays. There is no ideal essay. किसी भी टॉपिक का कोई ऐसे नहीं होता है. Just go through the topics जो आए हैं. You know, you will 2 friends can interpret that sentence differently. इतना subjective essay आता है पेपर में, right? I wrote an essay on dreams and dreams that don't let India sleep. This was one essay. Now this is something so wide in scope, है ना. कोई भी it can be so different for so many people. For a doctor it can mean something different, for an engineer it's different. आपका कोई और optional है, आप उस side से सोच सकते हो. So for an essay, what I did was, do not do it. I did not write any single essay.
मेरे पास टाइम ही नहीं मिला, मुझे मैं इतना सारा बाकी सब कुछ पढ़ना था. डू राइट अ कपल ऑफ एसेज, क्योंकि वहाँ पे जाके टाइम मैनेजमेंट बिकम्स एन इशू. तो एक बार ट्राई टू राइट 2 essays in 3 hours. ठीक है. Other than that, no special preparation is needed. Every thing that you're preparing for in GS will help you in writing the essay if you're thorough with the newspaper, with articles, with frontline, with this, that, whatever you're reading. तो वहाँ पे बन जाएंगे वो जितने 1200,000 words मांगते हैं, you can do it. One thing that I did was कि एक दिन पहले when I went to that hotel, कुछ करने को नहीं था, so I googled the quotes of some important people. Okay, you can, like, I googled Nelson Mandela, Mahatma Gandhi, Max Weber, और कौन था, Martin Luther King, Lincoln, quotes on democracy, on nationalism, on nation building, on education. तो I like reading quotes. तो मैंने ऐसे 10-12 quotes लिख लिए, वो मैंने 10-12 बार पढ़ लिए कि अच्छा एजुकेशन पे ये बोला है, कोफी अन्नान ने पीस पे ये बोला है, किसी ने कुछ बोला है. होना ही होना है कि जो एसेज आएंगे, यू कैन स्टार्ट वन ऑफ देम बाय दिस, क्योंकि डेमोक्रेसी, पीस, नेशन, यूथ, इनके अलावा कहाँ से आएंगे ऐसे, या वुमेन. तो दिस इज कॉल्ड, यू नो, दिस इज समथिंग स्मार्ट दैट आई थिंक आई डिड. तो डू दिस. एक दिन पहले लर्न अ फ्यू कोट्स, स्टार्ट योर एसे विथ अ कोट, एक्सप्लेन द कोट. इट गिव्स अ वेरी नाइस टच टू इट ना, कि आपने इतना पढ़ा है दैट यू नो व्हाट कोफी अन्नान थॉट ऑफ पीस, एंड इट इज जस्ट समथिंग दैट यू रेड यस्टरडे. बट दिस इज हाउ यू शुड प्रिपेयर. और फिर आप एंड भी कर दो एक कोट से, इट विल गिव अ वेरी नाइस यू नो फीलिंग टू द पर्सन हु इज चेकिंग, आई सपोज. और अच्छा हो जाता है, ऐसे में ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत नहीं है. बी वेरी डाइवर्स अबाउट इट. बहुत सारे पॉइंट्स ले लो. ड्रीम है तो बस ये नहीं कि जो तुम्हारी ड्रीम है बस वही लिखाया 10 पेजेस में. टॉक अबाउट इकोनॉमिक ड्रीम क्या हो सकती है, सोशल क्या हो सकता है, ये ड्रीम है तो इसके 10 एस्पेक्ट क्या है, इफेक्ट्स क्या है, पहले क्या होगा. चार्ट दैट थिंग इन योर माइंड फॉर 10 और इज टू मच, 7 minutes और सो, एंड देन राइट. ठीक है. एनीथिंग यू राइट विल बी ऑफ अ वंडरफुल स्टैंडर्ड, दैट आई कैन एश्योर यू. इसलिए आप ऐसे मत करो. आई हैव नोन पीपल हु हैव रिटन थिंग्स एंड कट एंड देन रिटन अगेन. Do not do this. The person who is checking maybe has even less knowledge than you. You know, you've been preparing. तो do not do this. थोड़ा अपने में confidence रखना है और ये quotes वाला थोड़ा करना है. And be brief, use simple words. बस be very diverse about it. और optimistic conclusions. चाहे कोई भी टॉपिक हो, चाहे टॉपिक बहुत ही सैड सा हो, वुमेन की हालत बड़ी ख़राब है, एजुकेशन कहाँ जा रहा है कंट्री का, यू शुड बी ऑप्टिमिस्टिक. ठीक है. सो ब्रिंग अप अ वेरी नाइस ऑप्टिमिस्टिक कंक्लूजन एंड फिनिश ऑन टाइम. ऐसे का इतना ही है. मेंस 4 पेपर्स. पेपर 1 इज ऑल स्टैटिक है ना. हिस्ट्री, ज्योग्राफी, अ लॉट ऑफ क्या क्या डिजास्टर एंड समथिंग. एंड सोसाइटी इज वन थिंग विच इज़ वेरी डायनेमिक इन पेपर 1. सो द स्ट्रैटेजी शुड बी स्टैटिक. आप प्रिपेयर कर लो प्रीलिम्स के साथ. ठीक है. क्योंकि प्रीलिम्स के लिए तो पढ़ना ही है सारा. तो प्रिपेयर इट इन अ वे कि आंसर भी लिखने आ जाए. थोड़ा ज्योग्राफी का ना कोई पूछ दे कि ओशन करंट पे 5 नंबर है, तो यू कैन राइट दैट, मेक दैट, क्योंकि प्रीलिम्स के लिए यू आर प्रिपेयरिंग. सो वेरी स्मार्टली जो पार्ट्स ओवरलैप कर रहे हैं उनको आप अभी प्रिपेयर कर लें अगस्त के पहले. फाइन. सोसाइटी एंड अदर्स, अ लॉट ऑफ बुकलेट्स, अ लॉट ऑफ दिस थिंग दैट थिंग. आई वुड से किसी एक, इफ यू रिस्पेक्ट और यू हैव फेथ इन सम वन कोचिंग, गेट दैट मटेरियल. और जो आपका न्यूज़पेपर की नॉलेज है दैट विल ऐड. और कोई ऐसे स्टैटिक क्वेश्चंस एक्चुअली नेवर कम इन यूपीएससी कि सोसाइटी क्या होती है, कितनी फैमिलीज होती हैं, जनरेशन क्या, दीज थिंग्स डू नॉट कम. दी ओनली थिंग दैट कम्स इज आज की सोसाइटी में खप पंचायत आ गई हैं, व्हाट डू यू थिंक ऑफ दैट, या व्हाट विल यू डू फॉर दैट. तो दैट इज समथिंग वेरी रेलिवेंट टू यू. ये हिंदू पढ़ने से या न्यूज़पेपर्स पढ़ने से यू विल नो, यू कैन राइट अ डिसेंट आंसर. सो आई एम जस्ट हियर टू, you know, I've heard this quote ki simplicity is the ultimate sophistication. So I am just here to simplify the process. यहाँ पे आपको इतने लोग मिल जाएंगे who will complicate the process, who will say कि मेंस में ये करना है, वो करना है, it's very difficult है, बड़ा ये है, वो है. ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है. तो पेपर 1 में complete the static portion with the prelims. जो डायनेमिक है you will have it, you will know it if you are a sincere student. और आंसर राइटिंग तो आई विल टॉक अबाउट बाद में कि वो कितना इंपॉर्टेंस है टू इंक्रीज दैट. कमिंग टू पेपर 2, a lot of sources, everybody knows the sources. You have Lakshmikant, you have PRS, you have PIB, you have ministry की websites, बहुत सारी, education, health, women, youth, कुछ भी जो हो रहा है. You have current affair materials from this coaching, very
nice, very concise and crisp material. Any other thing that you are doing? I used to follow Insights on India as well. एक साइट है, you might have known, जिसमें काफ़ी questions आते हैं, you know, daily they post up questions. I used to do that and that is also helpful. बाकी विजनाइज के करंट अफेयर्स हैं, यू हैव योर ओन हिंदू के नोट्स एंड दिस एंड दैट. पेपर 2 इज ऑल डायनेमिक. डू नॉट वेस्ट अ सिंगल मोमेंट रीडिंग एनीथिंग स्टैटिक फॉर पेपर 2. दिस इज समथिंग नोबडी टेल्स यू. वो जो मेंस का सिलेबस है ना, दैट सीम्स वेरी स्टैटिक कि उसमें लिखा हुआ है प्रेशर ग्रुप्स, तो फिर आप प्रेशर ग्रुप्स पे 10 पेज पढ़ते हैं कि ये कब ओरिजिनेट हुए थे, क्या हुआ. मेरे ख्याल से दैट इज़ नॉट राइट और स्मार्ट प्रिपरेशन. एक क्वेश्चन शायद आ भी जाए, आया भी था हमारे पेपर में, कुछ एक आया था प्रेशर ग्रुप से जो मुझे नहीं आता था बिकॉज आई हैड नॉट रेड द हिस्ट्री. बट बी वेरी रेलिवेंट इन द प्रिपरेशन. प्रेशर ग्रुप्स आए तो यू शुड नो द प्रेशर ग्रुप्स हैपनिंग राइट नाउ इन द कंट्री. वो क्या मांग रहे हैं. एनजीओ टॉपिक है तो नो अबाउट द एनजीओ जो आज चल रहा है. ओके ये नहीं कि कब बना था, क्या हुआ था, दैट इज इरेलीवेंट आई फील. सो ऑल ऑफ पेपर 2 वेरी रेलिवेंट, वेरी कंटेम्प्रेरी, वेरी डायनेमिक. कीप रिवाइजिंग. जो भी आपका सोर्स है, यहाँ के करंट अफेयर्स आर वेरी गुड. वो सोर्स है, चाहे PRS सोर्स है, चाहे आपका MPR सोर्स है, जो भी सोर्स है, कंटिन्यू विद दैट एंड कीप रिवाइजिंग टिल द एंड. बेस्ट एडवाइस फॉर पेपर 2. इंटरनेशनल अफेयर्स, डू नॉट स्पेंड आई विल से डेली का वो आप इंटरनेशनल अफेयर्स अगर हिंदू के पढ़ने लगो ना तो होगा कि आज जापान पहुँचे, फिर आज लंच हुआ, फिर कल डिनर हुआ, फिर एक बात हुई, फिर गिफ्ट एक्सचेंज हुआ. दैट इज़ समथिंग वेरी इरेलीवेंट. इंटरनेशनल अफेयर्स आई वुड से आप पेपर से मत करो. गो थ्रू दी कॉम्पिलेशंस इन दी एंड. और इफ़ यू आर वेरी इंटरेस्टेड इन नेशनल अफेयर्स तो आप ऑनलाइन न्यूज़ कोई रेलिवेंट सी पढ़ लो कि क्या हुआ भाई 10 दिन की विजिट में, एंड में क्या हुआ. 10 दिन का 10 दिन के पेपर पढ़ के उनके नोट्स बनाना इज नॉट रेलिवेंट. इन नेशनल अफेयर्स इज समथिंग वेरी ब्रीफ एंड समथिंग वेरी टू द पॉइंट. क्वेश्चंस भी बड़े अच्छे आते हैं उसके. तो आई वुड से कि गो थ्रू दी कॉम्पिलेशंस इन द एंड. इट्स वेरी सिंपल. ठीक है, एक अच्छा सा आंसर बन जाता है. इफ़ यू हैव सफिशिएंट 6-7 पॉइंट्स के नॉलेज तो यू कैन राइट अ गुड आंसर ऑन एनी इंटरनेशनल का क्वेश्चन. पेपर 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक सर्वे. Do that both for prelims and mains. Or key features of budget, again important. ARC very important for disaster management. And answer writing I'll tell you. Paper 4 very categorically I am saying it requires no special preparation. मुझे इतने सारे मेल्स आए अबाउट पेपर 4 की स्ट्रैटेजी बता दीजिए. आई हैड नो स्ट्रैटेजी ऑफ पेपर 4. आई हैव गॉट 106 मार्क्स विच इज़ average or more than average considering this year, whatever. I did not spend more than 6 days on paper 4 in the entire year. ठीक है, and 3 of those days were before prelims. जब मुझे पता ही नहीं था कि ethics होता क्या है तो I bought that book और मैंने थोड़ा सा पढ़ा. एक IPS officers की कोई book है which I had bought. और paper 4 के लिए I will just tell you one thing that I prepared for it by going through vision के test papers. Something very honestly I want to confess. I was a vision का test series का student, so they had these test papers. May में कभी उन्होंने कोई ethics के test लिए थे. I went through that. I went through the answer booklet. I understood कि answer लिखते कैसे हैं. कि अगर question है you are the DM तो answer ऐसे I am the DM करके start नहीं करते हैं. You start it with okay, considering the facts, what I would do in this situation. This somebody has to teach you this also. You know, if you don't go to a coaching, ये भी तो पता होना चाहिए. So this is what I learnt from the test series. मैंने खुद से इसमें हार्डली कोई एफर्ट लगाया है. आई थिंक दिस इज़ अ टेस्ट ऑफ योर एनालिटिकल एंड डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज विच यू कैनॉट लर्न इन एन ईयर. एंड इट इज़ अ टेस्ट ऑफ कॉमन सेंस. बहुत ही कॉमन सेंस के क्वेश्चंस आएंगे एथिक्स में. डू नॉट लिसन टू पीपल कि ये करो वो करो, 100 केस स्टडीज पढ़ के जाओ. इट वॉन्ट बी रिपीटेड, राइट. सो जॉइन एनी गुड टेस्ट सीरीज, गेट देयर पेपर्स, लर्न की लिखने का तरीका क्या है. अगर 4 ऑप्शंस होते हैं तो हाउ डू यू अप्रोच इट. डू नॉट गो फॉर एक्सट्रीम्स. बिल्कुल ही तोड़ फोड़ कर देनी है किसी आंसर में, ये नहीं करना है. और बिल्कुल ही बेनाइन हो जाना है, ये नहीं करना है. गो फॉर अ मिडिल पाथ. ठीक है. हाउ टू राइट वो आप किसी टेस्ट सीरीज से पढ़ समझ लेंगे. वॉट इज द वे टू अप्रोच, दैट इज ऑल दैट इज नीडेड. आई कैन टेल यू दिस, एथिक्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि गांधी जी का ये कोट था, वॉट डू यू अंडरस्टैंड बाई इट. This is not something that you can learn, and this is not something that you should waste time upon. ये तो you go there, you see the quote and write about it. ठीक है.
So don't be worried about paper 4. It is a big this nightmare for students. I would just say be a little bold, be a little courageous. आपको जो लग रहा है आप वहाँ लिख के आओ. Do not go for extremes. वो लग रहा है तो then you are wrong. ठीक है? Do not go for extremes and choose a middle path. आप थोड़ा सा सोच लो कि you are the administrator, you know, you are not a student raising protests. तो अगर कुछ ऐसी सिनेरियो आता है, think of कि peace कैसे build होगा, consensus कैसे होगा, and go for a middle path. They even give you options. तो उसमें कुछ ज़्यादा सोचने की भी बात नहीं है. So that is all about mains. PT I will not talk about. Personality test, the most whimsical part. So वो छोड़ देते हैं. Mains answer writing, something very specific which I want to say is कि एक चीज़ जो मैंने की, which I think raised my bar, because I very honestly feel कि मेरा content बहुत अच्छा नहीं था. You know, I am a doctor. मैंने 14 के नवंबर से स्टार्ट किया था. आई वॉज नॉट वेरी वेल रेड एज मोस्ट ऑफ यू हियर मे बी, बट ठीक है, साल भर प्रिपरेशन थी तो थोड़ा बहुत तो आता ही है हर किसी को जब जाते हैं. बट वॉट आई डिड वॉज कि मुझे ना बड़े लोगों ने बोला था कि ये तो बेकार होता है, इंट्रोडक्शन लिखना, कंक्लूजन, ये क्या होता है, ऐसा थोड़ी होता है, इतना टाइम कहाँ मिलता है. बट वॉट आई डिड वॉज मैंने विजन की टेस्ट सीरीज के कुछ मॉडल आंसर्स देखे और उसमें मैंने देखा कि दे ऑलवेज बिगिन विथ एन इंट्रोडक्शन एंड दे ऑलवेज एंड विथ अ कंक्लूजन, है ना, जो मॉडल आंसर्स होते हैं. सो आई थॉट कि ठीक है, कंटेंट तो वैसे भी नहीं होता मेरे पास, तो ये तो लिखी आऊँगी, यू नो, बिकॉज आई कैन राइट इंग्लिश और थोड़ा बहुत तो आता ही है, कोई भी क्वेश्चन है तो ये तो कराऊंगी. तो दिस इज़ वेयर दिस टेस्ट सीरीज हैज़ हेल्प मी एंड विच इज़ वाई आई से कि टेस्ट सीरीज इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट दैट यू कैन मेक. अगर आपके पास 10,000 रुपये हैं, 5,000 रुपये हैं, आप उनको बचा के टेस्ट सीरीज में लगा दो और कोई किताबें भी मत खरीदो. गेट एन इंटरनेट कनेक्शन एंड जॉइन अ टेस्ट सीरीज, दैट इज़ इनफ. तो दिस इज समथिंग विच हैज़ हेल्प मी इनॉर्मसली. मैं यहाँ आती थी, फर्स्ट टेस्ट विच आई गेव, आई एंडेड इट इन 3 hours and 45 minutes, बिकॉज मैंने सोचा था कि अब लिख के तो आऊँगी, जब आ रहा है तो आई विल राइट एवरीथिंग, चाहे जितना टाइम लग जाए. सो आई रोट एवरीथिंग एंड आई ऑलवेज बिगैन विथ एन इंट्रोडक्शन. मुझे एक बार आई रिमेंबर विजन के टेस्ट सीरीज में आई गॉट दिस कॉमेंट कि इंट्रोडक्शन शुड बी ब्रीफ, it should not cover more than 1 page. But this is something which you know you should practice with it. You should learn कि अगर आपको 7 मिनट मिल रहा है and the question is something very basic, मेक इन इंडिया पे क्वेश्चन है, you know 10,000 points on it, but you have to write an introduction. आप एक लाइन ज़रूर लिखें कि मेक इन इंडिया क्यों रेलिवेंट है आज की कंट्री में, आज की गवर्नमेंट में, आज के यूथ के लिए. राइट इट इन 2 lines, begin your answer, finish it, give an optimistic conclusion. If this goes to fruition, if this coupled with skilling can be brought to a completion, India would soon join the rank of greatest nations in the country. Ended with this. Question ने ऐसा कुछ मांगा भी नहीं था. But this is something I feel added to my answers. I got 112 in paper 3, which is too much. And I was the most scared of economics, जो इस पेपर में आता है. मैंने कुछ ढंग से उसकी पढ़ाई भी नहीं की थी. आई थिंक आई जस्ट डिड करेंट अफेयर्स ऑफ इकोनॉमिक्स. वैसे जो स्टैटिक चीज़ें होते हैं तो आई वॉज वेरी शेकी ऑन दैट. वैसे वो अब आता भी नहीं है, बट दिस इज समथिंग विच आई वुड से कि आई एम प्रिटी श्योर मेरे जो नंबर आए, दिस हैज़ अ बिग रेलिवेंस टू इट. देयर वर क्वेश्चंस आई न्यू नथिंग अबाउट. स्पेस टेक्नोलॉजी पे क्वेश्चन था, मुझे आता नहीं था, बट आई बिगैन विथ स्पेस टेक्नोलॉजी. क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या है कंट्री में आज रेलिवेंस. एंड में कि अच्छा ठीक है, ये सैटेलाइट है, थोड़ा बहुत ही पता था उसके बारे में. वॉट कैन बी डन, अगर इस सैटेलाइट में एक ये चीज़ भी आ जाए तो वी कैन इवन मैनेज दिस. एन ऑप्टिमिस्टिक कंक्लूजन, अ गुड इंट्रोडक्शन, रेलिवेंट कंटेंट. बिकॉज देखो, समथिंग विच इज़ वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग, कंटेंट ना हर किसी का सिमिलर होता है. मेक इन इंडिया पे आप क्या नया लिखोगे जो बगल वाला नहीं लिख रहा. आफ्टर अ पॉइंट व्हेन यू हैव रीच्ड प्रीलिम्स एंड यू आर अ सिंसियर एंड सीरियस स्टूडेंट, हर किसी का कंटेंट सिमिलर होता है ना यार. पीपल आर रीडिंग इकोनॉमिक सर्वे, पीपल आर लुकिंग एट द PM स्पीच और वो कुछ अपना सोच रहे हैं. तुम नया तो उसमें कुछ लिख ही नहीं सकते, वो तो गवर्नमेंट का क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है मेक इन इंडिया. तो दैट इज़ वाई दीज आर द एंसिलरी एस्पेक्ट्स ऑफ प्रिपरेशन विच यू शुड रियली स्ट्रेंथन. ठीक है, तो दिस इज वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट मेन्स. ट्रेन योर सेल्फ टू राइट इंट्रोडक्शन. चाहे आपको कोई बोले ये बकवास होता है, इससे कुछ नहीं होता है, तो बेकार लोग लिखते हैं. नो, you are going, ever since I got selected, I have been asked to talk on some 20-30 places, platforms. You should know how to introduce yourself. You should know how to talk about the content and conclude your speech. This is something very relevant to the place where you are going. I feel, अब मुझे लगता है ऐसा. Yesterday I went to a place जहाँ पे
the Minister of State, Mr. Jayant Sinha had come. He gave such a wonderful introduction. So this is what I'm saying कि आप इसको irrelevant मत समझें. Your way of writing the answer is as important as the content of the answer. Work on that. More than working on prelims के 10,000 facts, work on that. ठीक है? So that is, I think, more or less. Paper 3 में very important is economic survey. Very important is writing answers. Again, either on insights या कोई online चीज़ कर रहे हैं आप या यहाँ classroom test दे रहे हैं. Very important. बहुत questions repeat होते हैं. Even from this test series, I think more than 50% questions were repeated in paper 3. So smart studying coupled with test series का बहुत सारा support. And what else in paper 4? Paper 4 मैंने आपको बता दिया. It requires थोड़ा सा स्मार्टनेस इन प्रिपरेशन. डू नॉट गो इन टू डिटेल्स ऑफ कि किसकी क्या फिलॉसफी थी, ऐसा मुझे लगता है, बिकॉज हमारे साल ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया कि व्हाट इज डिओन्टोलॉजिकल एथिक्स, कौन सा क्या एथिक्स, किसके फादर कौन थे, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. ओनली व्हाट यू थिंक, व्हाट विल यू डू, व्हाट इज योर डिसीजन, ऐसी क्वेश्चन आते हैं. सो लर्न दैट फ्रॉम 2 or 3 मॉडल टेस्ट पेपर्स. आप अपना थोड़ा थिंकिंग थोड़ा सा डेवलप कर लें एज एन एडमिनिस्ट्रेटर and go and bear your heart out. Ethics में one very important thing is कि time management is very important, क्योंकि पेपर खत्म नहीं हो पाता है. I was writing till the last moment but I could finish it. A lot of people I met had not even finished the paper. It is very big. तो ethics का टेस्ट आप कम से कम 2 तो देना ही देना है, and 4-5 हो जाए तो even better, क्योंकि वो तो ऐसा है कि सुबह उठो आ जाओ टेस्ट देने, no preparation required, and write it in 3 hours. ठीक है? So that is something very relevant. और मेंस के लिए आंसर राइटिंग इज इम्पॉर्टेंट. आंसर राइटिंग इतना नहीं कि आप रोज लिख रहे हैं, बट येस 8 to 10 टेस्ट टाइम्ड करके, वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज़ अ वेरी सिंपल प्रोसेस. आई वुड जस्ट कंक्लूड विद दिस कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और द मोस्ट हार्ड जो ऑब्स्टिकल आपके रास्ते में है वो आप खुद हो. मैं खुद थी अपने रास्ते में. आई ज्वाइन दिस टेस्ट सीरीज, मतलब वो पैसे मैंने आके फरवरी में दे दिए थे. इनकी एक टेस्ट सीरीज होती है ना मेंस की, फरवरी से. सो आई केम टू दिल्ली, आई पेड देम, आई वेंट बैक होम एंड आई डिड नॉट रीड, आई डिड नॉट राइट एनी टेस्ट. आई केम इन सेप्टेम्बर एंड देन आई स्टार्टेड राइटिंग टेस्ट. तो यू आर द ऑब्स्टिकल इन योर वे. हैड आई डन इट फ्रॉम फरवरी इटसेल्फ, मुझे लगता है और कुछ अच्छा होता, राइट? सो डोंट बी अफ्रेड टू स्टार्ट. If there is one message that you should take away, do not be afraid to start. Start now. Start with all your doubts. Start with fear. Start with pain. Start where you are with what you have. This is something I've written somewhere else also. आपको डर लग रहा हो, आपकी प्रिपरेशन ना हो, कल टेस्ट है, अब मैं प्रिपेयर करके दूंगा, ये तो इज द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू टू योर सेल्फ. यूपीएससी में यू विल प्रिपेयर फॉर एन ईयर लाइक मी, लाइक अ नर्ड, एंड यू विल गो एंड यू विल सी कि आपको 10 क्वेश्चन तो आते ही नहीं है. And this will happen. This will happen to you. That is why I am saying do not wait for the time जब आपका सब prepare हो जाए and you will go and give and you will know all the 20 questions of the test. This will never happen. This is not an exam of that sort. ठीक है? तो do not be afraid to start, and you can do whatever is your dream, what I have done. If that is your dream, you can, you should, and if you are brave enough to start, you will do it. Okay? That is all. Thank you for listening to me.